नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु जी की ब्लेस संगत, गुरु जी के टाइम की संगत, उषा भाटे आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। उन्हीं का स्वागत करने के लिए और सेशन को मैनेज करने के लिए तीनों ढिलो आंटी जी जो गुरु जी के टाइम की संगत हैं, बहुत ही प्यारी संगत हैं, वो सेशन को मैनेज करेंगी। मैं तीनों आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को कन्वीन करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू तीनों आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उषा आंटी, उषा भाटिया आंटी कोई ओपरे नहीं है, बहुत पुरानी संगत है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है। अंकल और आंटी गुरु जी के टाइम दे विच ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਉਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ, ਉਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਟਸ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਟੂ ਮੀ ਮਾਈਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਫਰਮ ਪੁਆਇੰਟ A to B to C to D। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ's every satsang there are such deep nuances ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ 20-25 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਲ ਤੂਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। And there's a very beautiful story by a Jewish rabbi who says ਕਿ ਆਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਗਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is all about faith। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। The practice I follow is I close my eyes and I imagine everything happening in front of my eyes। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਕੋਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ that you imagine me standing behind you and I will be there, or something to that effect. I can't remember it completely word to word, is paraphrasing it. So if he says that you think of me and I will be there, you imagine me being there and I will be there, he gave this to us in writing। So ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ when we imagine him to be there and we are sitting
witnessing that satsang, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ there is nothing known as time. So with Guruji, in our relationship with Guruji, it's just being simple as we can get. Like a simple devotee from the village will get more than what we can get, क्योंकि साडा 1 + 1 2 है. गुरु जी हमेशा कहते सी ना, मैं थानू 1 + 1 3 करके दिखावांगा. And he would always keep saying, मैं प्रैक्टिकल गुरु हां, मैं प्रैक्टिकल गुरु हां. और ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ मैं प्रैक्टिकल गुरु हां. Because he was always pointing his finger to the fact कि मैं कौन है, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. बारी बारी ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ. ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਊਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ. ਸੋ ਊਸ਼ਾ ਆਂਟੀ, very warm welcome to you. I hope you can hear me. हाँ जी, जय गुरु जी आंटी. जय गुरु जी आंटी. जय गुरु जी. एंड गुरु जी को मेरा प्रणाम. गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम. शुक्राना गुरु जी की आपने फिर एक मौका दिया, जैसा कि आपका आदेश था, जो आप बार बार मुझे कहते थे तूने मेरा सत्संग करते जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड तूने सत्संग नहीं रोकना. That's what I feel कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि नो मैटर कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए, बट गुरुजी का सत्संग जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा रहे हैं. और इतनी हिम्मत देते हैं कि जैसे आंटी ने बोला कि गुरुजी का 1:1 कनेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और जैसा कि गुरुजी का आदेश था मुझे संगत लाने का, तो मैं संगत मैं तो क्या ले जाने वाली हूँ, वो गुरुजी का ही बुलावा होता है. और जिसको गुरुजी ने बुलाना, गुरुजी कुछ सी कि भाई इसके आसपास किसको जरूरत है और किसको खींच के लाना है. और गुरुजी ने एक मुझे पेंडेंट दिया था और वो मेरे गले में बिल्कुल ऐसे नेक लाइन पे आता था और गुरुजी ने विद चेन दिया था. तो गुरुजी का वो पेंडेंट बहुत प्रोमिनेंट था, क्वाइट बिग और अच्छे से दिखाई देता था. तो वो मेरे गले में 7 साल से ज्यादा रहा. और उसकी चेन पतली सी थी और बार बार टूटती थी, सिल्वर चेन. और मेरे हस्बैंड बार बार इधर उधर जाते थे उसको ठीक कराने. बहुत सारे सिल्वर के जो ज्वेलर हैं वो मना कर देते थे कि इतनी पतली चेन में, सिल्वर में वैसे भी टांका नहीं लगता और ये चेन तो कई बार टूट चुकी है. बट गुरुजी की जो लीला है वो गुरुजी ही जानते हैं. और ऐसे कई चीजें गुरुजी ने हम लोगों को दिखाई कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होती हैं. और उसी पेंडेंट को देख के लोग काफी कुछ पूछते थे कि ये कौन है और आप हमको यहाँ, तो गुरुजी सत्संग शुरू करवा देते थे. और इस तरह से गुरुजी का बुलाने का जो संगत को, नई संगत को लाने का जरिया शुरू हो गया. जैसा कि आंटी ने बोला कि हमको 1:1 कनेक्शन रखना है. ऐसे ही गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं और जैसे ही मैं कोई संगत को लेकर जाती हूँ तो गुरुजी संगत जो है माध्यम ढूंढती है कि लाइक मुझे कुछ जैसे कुछ शेयर किया हुआ है जाने से पहले कि आप गुरुजी को बताओ मेरी क्या प्रॉब्लम है. तो गुरुजी एकदम बहुत रेयर होता था, नॉट टू एवरीवन. गुरुजी ऐसे अपनी उंगली करके ऐसे बाजू सीधी करते थे कि मेरे ना एना नु कहे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़न, मेरे नाल तार जोड़न त चीज़ां ऑटोमेटिकली. गुरुजी फिर हाथ को ऐसा ऐसे ले जाते थे झटके के साथ कि चीज़ां ऑटोमेटिकली होंदियां ने. सो ये गुरुजी को मैंने काफी बार करते हुए देखा
और नॉट विद एवरी संगत, किसी संगत के साथ गुरुजी इस तरह की बात किया करते थे जो हम लोगों के लिए भी थी कि मेरे नाल तार जोड़ो। एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरा मेरा कनेक्शन जो है बहुत अलग है, उसमें तीसरा कोई नहीं आएगा बीच में। गुरुजी मेरे से हिंदी में भी बात करते थे क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो आई एम पंजाबी। हम लोग बाहर रहे श्रीलंका और मैं यूपी से हूँ, तो घर में पंजाबी नहीं बोली जाती थी। तो गुरुजी तो जानी जान हैं, अंतर्यामी हैं, तो मुझसे पंजाबी में बात करते थे गुरुजी। जब उनको लगता था कि मुझे समझ नहीं आई तो गुरुजी हिंदी में भी बोलते थे और समटाइम्स इन इंग्लिश आल्सो। सो गुरुजी के साथ की जो जर्नी है वो बहुत ही एक अलग ही एक उसमें मैं वर्ड्स में उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वो क्या था, वो वक़्त क्या था, उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, उनका अपने चरणों में जगह देना, सुबह-सुबह तक बिठाना। इट्स लाइक उसको कोई भी वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता। हाँ, सत्संग के माध्यम से लाइक हम कोशिश करते हैं, जैसा कि आंटी ने बोला कि हर सत्संग में जो भी गुरुजी बुलवाते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बोला कि तूने मुँह चलाना है, बुलवाना मैंने है। सो आई ऑलवेज़ फ़ील कि गुरुजी ही बुलवाते हैं और मैंने कुछ सोचा होता है शब्द सुन के कि आज शायद गुरुजी ये वाला सत्संग कराएँगे, बट नहीं, जब मुँह खुलता है तो गुरुजी कोई और ही वर्ड्स कहाँ से कहाँ घुमा देते हैं। अभी भी घुमा ही रहे हैं लाइक। तो गुरुजी के साथ की जो जर्नी वो यही कहती है कि 1:1 कनेक्शन रखो। तो गुरुजी ने एक दिन बोला मुझे कि आंटी तेरे मेरे बीच तीसरा बंदा कोई नहीं आऊगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे फेस पे क्वेश्चन मार्क था कि तीसरा बंदा कौन हो सकता है? लाइक तो अंकल साथ कह रहे थे, कहने नॉट इवन पाटिया। तो गुरुजी उनको कभी भाटिया बुलाते थे, कभी भाटिया अंकल बुलाते थे, कभी प्यार से कुछ भी बोलते थे, तो काफ़ी हँसी मज़ाक भी करते थे। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर वाज़ वेरी एक्सीलेंट लाइक कि और जब ज़ोर से हँसते थे तो हमारा दिन बन जाता था उस दिन। सो देन मैं मन में सोच रही थी कि ऐसे कैसे कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन है वो हम दोनों हैं, हम एक हैं। बट गुरुजी सेड नहीं, अम, तेरे मेरे बीच कोई नहीं आएगा, जब नॉट इवन ए पाटिया। तो तेरा मेरा जो है डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। सो वो गुरुजी की बात मुझे अब बहुत याद आती है। उनका एक्शन, उनका बोलना, उनका कहना और उसका समझाना, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था किसी भी चीज़ का, ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई नहीं था मेरी लाइफ में, कोई पार्ट नहीं, टिल टुडे नो, नथिंग इन माय लाइफ, ओनली एंड ओनली गुरुजी केम इन माय लाइफ एंड ही इज़ इन माय लाइफ एंड ही विल रिमेन इन माय लाइफ। तो ये मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ की। तो फिर मैं ऐसे गुरुजी को देख रही थी कि गुरुजी हम दोनों का तो हर चीज़ साझा है। देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी तेनू समझ नहीं आ रही, वक़्त आन दे नाल तेनू समझ आ जाएगी। तेरी जर्नी मेरे नाल अलग है, अंकल दी अलग है। क्योंकि जब तेरा मेरे प्रति ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा होएगी, तो ए अंकल जेलस हो जाऊगा। तो हमारी लाइफ में तब तक जेलसी वर्ड था ही नहीं, हम दोनों की लाइफ में। पर हाँ, गुरुजी को लेकर हम लड़ते थे कई बार कि नहीं मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और अंकल कहते थे नहीं मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सो वो गुरुजी का बोला हुआ वर्ड था, तो वो तो सच होना ही था। तो बाद में हम लोग ऐसे ऐसा भी नहीं कोई लड़ाई ऐसी नहीं थी। हाँ, थोड़ी-सी हम लोग हो जाते थे इस बात के लिए, नहीं गुरुजी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग है और अंकल बोलते थे नहीं तुम्हें क्या पता, गुरुजी ने मुझे क्या दिया है। तो ये जेलसी वाली बू थोड़ी-सी अंकल से आने लग गई थी, जो मेरे बेटे ने एक दिन बोला कि मम्मा ये तो गुरुजी बोल गए हैं, तो पापा तो जेलस ऑफ यू। तो हँसी-मज़ाक में चीज़ थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, पर लेकिन हाँ, अंकल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरे हस्बैंड को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अम, 1.5 महीना ही हुआ है अभी उनको ये संसार को छोड़े हुए, और जो उनकी जर्नी गुरुजी के साथ रही, नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम
हम गुरुजी ने एक दिन बोला व्हाट इज लाइफ, तो उन्होंने सिंपली जवाब दिया कि लाइफ इज अ प्रॉब्लम, लाइफ समस्या है। तो नो मैटर, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आज आज की तारीख में हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, उसमें सुकून तो बहुत कम है। बट हाँ, when when you come to Guruji, you get everything. You get sukoon, you get peace of mind, you get strength, you get positivity. That's what I got from my guru. मेरे गुरु ने मुझे ये चीजें दी हैं, नो मैटर कुछ भी हुआ हो लाइफ के अंदर। और वही मेरे हस्बैंड के, अगर मेरे हस्बैंड का विश्वास ना होता तो शायद मेरा भी विश्वास इतना डेवलप ना होता। तो उनके मुंह में तो बस गुरुजी 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 गुरुजी। मुझे ही वॉज वेरी वेरी फूडी, एंड गुरुजी ने ये चीज मुझे बोली भी कई बारी। तो एक सत्संग गुरुजी के वक्त का गुरुजी याद करवा रहे हैं कि उन्होंने हम लोगों को गुरुजी ले गए थे आहूजा नंबर 1 ढाबे में। नियरली जब सब वाइंड अप हुआ, लंगर वगैरह हो गया वहाँ पर, नियरली 1-1:30 बजे का टाइम था। तो गुरुजी अपनी कार में बैठ रहे हैं और मैं उनके चरणों को छू रही हूँ, और 1:30 बजे का टाइम है। और गुरुजी मेरे कान में बोलते हैं कि मैं भाटिया अंकल का ख्याल रखांगा, तू एदी फिक्र ना करी। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत फूडी थे एंड उनकी बहुत पैरामीटर सारे बिगड़े हुए थे। उनको शुगर क्या, ब्लड प्रेशर क्या, कोलेस्ट्रॉल क्या, there were so many problems, uric acid, everything was double triple. So गुरुजी ने एक बार जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास आए थे तो हम दोनों ही बहुत बीमार थे। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से मांगा कि मेरी वाइफ को ठीक कर दो। तो मुझे सब लोग, मेरे रिश्तेदार कहने लग गए कि देखो अंकल तेरे को कितना प्यार करते हैं और आपने तो अंकल के लिए कुछ नहीं मांगा। तो मैंने मन में सोचा कि अभी तो मुझे पता ही नहीं हम कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं, क्योंकि मैं आना नहीं चाहती थी। मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। बट वो तो साक्षात ईश्वर धरती पर आए थे, वो तो उनका बुलावा था। दैट्स व्हाई उनकी एक खींच ऐसी आई कि वो जैसे एक कहते हैं ना, उठा के इनको आज मेरे पास लेके आना, वैसे वाला सीन हो गया था। और एक जैसे 3 जने उठा के आपको गुरुजी के पास लेकर जा रहे हैं। तो मैं वहाँ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने बोला जब इनका मन करे ये मेरे पास आ सकते हैं, और हम तो रोज ही खींचे चले जाते थे वहाँ पर। सो देन गुरुजी, मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात मांग ली उन्होंने, आपने उनके लिए क्या मांगा? तो मैंने मन में सोचा कि जहाँ मैं आई हूँ और जहाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है आना, अगर वो कुछ भी हैं, या वो शक्ति हैं, या वो महापुरुष हैं, या वो भगवान हैं, वो जो भी हैं, उनको मेरे मन की बात पता होगी और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट संगत जी हैपन। गुरुजी ने मेरे कान में बोला कि तेनू भाटिया अंकल दी टेंशन लेने दी लोड़ नहीं है, एनू मैं फिट रखांगा। सो ये वाली बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई जब मैं माथा टेक के कार में से बाहर आई, और मेरे हस्बैंड ने उसको ऐसे लिया कि बस लाइक कि मैं तो अब जो मर्जी खाऊं पीऊं। और ही वॉज वेरी वेरी फूडी, लाइक चने भटूरे क्या, टिक्कियाँ क्या, चाट क्या, वो डेली का उनका खाना था इस तरह का। और हम लोग यही कहते थे उनको, मेरा बेटा भी और बच्चे भी, कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मिस यूज करते हो। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा उनका कनेक्शन अलग है, तुम बीच में मत आओ कनेक्शन के। तो हम कहते थे देखो आज की तारीख में कितने लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, और बहुत सुनने में आ रहा है कि अम, ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड वेंटिलेटर पे 50-50 दिन रहे हैं और वापस नहीं आए। तो वो यही कहते थे कि 1.25 करोड़ ਦਾ ਬਿੱਲ बनाने ਦੇ बाद भी मैं उन्होंने नहीं बचा सकी। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही थी। तो माय हस्बैंड सेड कि तुम देखना, मुझे गुरुजी एक झटके में लेकर जाएँगे, और मैं ना वेंटिलेटर पे मुझे जाने देंगे, ना मैं किसी से सेवा लूँगा। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ उनकी लाइफ़ में। तो इससे ज़्यादा गुड कनेक्शन किसका हो सकता है?
और उनको सब कुछ था, लाइफ इतनी अच्छी थी हम लोगों की, ब्यूटीफुल लाइफ एट दिस स्टेज। और उनका बस हर समय कि बस मेरा वक्त आ गया, जैसे 70 क्रॉस की है, मैं तो गुरुजी के पास जाना है, मैं तो गुरुजी के पास जाना है। तो इस तरह से वो कहने लग गए थे। और फाइनली वो गुरुजी के पास चले गए। और हम सबको यही लगता है, नो डाउट बहुत हम मिस करते हैं उनको, बट यही कि एक सुकून है कि वो एक ऐसा बार बार बोल के कि मुझे जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है, और वो फाइनल डेस्टिनेशन पर चले गए। सो गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया जाने से, मनुष्य रूप छोड़ने से कुछ टाइम पहले, और बोला कि हुन अंकल नु कह मैं ਇਹਦਾ बहुत ख्याल रख लिया, ਇਹ बड़ा फूडी हैगा ते ਇਹਨੂੰ कह हुन ਇਹ अपना ख्याल आपा रखेगा, आपू रखेगा, इस तरह से गुरुजी ने बोला। तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा कि देखो गुरुजी कह रहे हैं अब आप अपना ख्याल अपने आप रखोगे। देन ही इग्नोर्ड, ही सेड नहीं, मुझे तो गुरुजी ने ये बोला है कि तू ऐश कर। तो मैंने कहा वो चीज़ भी मुझे बोली थी कि मैं इसको फिट रखूंगा, तो अब ये चीज़ भी मुझे बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने जब दूसरी बार मुझे बोला तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको पता है ये सुनते ही नहीं हैं, और ये तो अपना बहुत फूडी हैं, और अब आप उनको बुलाओ, आप बोलोगे तो ये शायद कुछ सुनेंगे। सो गुरुजी ने कहा जा बुला लिया इनू जरा, दस इनू मैं ठीक करा। तो मैं इनको लेके गई, ऐसे गुरुजी नीचे कार्पेट पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने हम दोनों को बिठाया और उन्होंने, संगत जी सबके लिए जो भी आप सुन रहे हो, ये जो सत्संग है, इसमें जैसे आंटी ने बोला कि अपने गुरु को फील करो। तो इस तरह के जो सत्संग गुरुजी देते हैं, वो एक फील कराने के लिए कि भगवान कैसे हम लोगों का ख्याल रखते हैं। तो गुरुजी ऐसे बैठे हैं कार्पेट पे और बोल रहे हैं कि अंकल देख, तू बहुत खान पीने ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, तो ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, तो ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो गुरुजी ने पूरा प्रोसेस ऑफ पैनक्रियास समझाया उस दिन, और बोला उसका फंक्शन भी सारा समझाया कि जब लोड पैंदा है तो पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देंगे, घट इंसुलिन बनती है, जब इंसुलिन बननी बंद हो जाती है तो शुगर बढ़ती है। इस तरह से गुरुजी ने काफ़ी चीज़ समझाई। फिर गुरुजी ने इन शॉर्ट फिर गुरुजी ने कहा कि डॉक्टरां दे कोल हर ऑर्गन का रिप्लेसमेंट है, हर ऑर्गन बदल सकते हैं डॉक्टर, बट टिल टुडे ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ रिप्लेसमेंट नहीं है, वो रब दे हाथ विच है। देन मेरे हस्बैंड ने उनके चरण पकड़े, वो बोले गुरुजी मैंने तो आपको रब ही माना है। तो बस वो दिन उन्होंने ऐसी पतली गली से निकले कि लाइक उन्होंने टिल 72 में आए और खूब ऐश करी। ही लिव्ड लाइक अ किंग एंड वेंट लाइक अ किंग। तो ये गुरुजी की लीला है कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि अम, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो अपनी लाइफ के अंदर। देखो, देयर इज नो एंड ऑफ मेकिंग मनी, गुरुजी कहा करते थे। उतना पैसा होना चाहिए जिस दे विच बच्चे भी संभले रहन, परिवार भी संभला रहे। तो और मटेरियलिस्टिक लाइफ का कोई एंड नहीं है। आज मर्सिडीज है तो कल ये चाहिए, आज इतना बड़ा घर है तो उससे बड़ा चाहिए। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे फील होता है वो है हेल्थ। अब अगर आप हंसते खेलते विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन अगर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हो, अम, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी एंजॉय करके करते हो, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कोई नहीं हो सकती आज की डे टू डे लाइफ के अंदर। दैट्स व्हाट वी गॉट फ्रॉम आवर गुरु। गुरु जी ने हमको बहुत पॉजिटिव बनाया। हम लोगों को जरूर प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ इश्यूज भी मेरे को, वो तो कर्म काटने का उनका तरीका था। गुरु जी ने बोला कि मुझे, जब मैं गुरु जी के पास आई, कि मैं तेरे से तपस्या कराऊंगा। देन मेरे को और तो रिलीजन का कोई भी ए नहीं मालूम था, बट तपस्या वर्ड तो अच्छे से समझ आता है।
तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी कि गुरुजी क्या तपस्या कराओगे मेरे से? मेरी लाइफ तो इतनी हँसती खेलती थी जब आपकी आवाज़ आई। मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी टिल 95, और जब से आपने आवाज़ लगाई और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, और मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम नाम का वर्ड ही नहीं, ए ही नहीं था। वी हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो गुरुजी कहते हैं ना, भक्तों को चुनते हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना और अपने चरणों में बिठा के उनके कर्मों को काटा। और देन गुरुजी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आंटी, मैं तेरे जन्मों के कर्म काटूँगा और 90% मैं इरेज़ कर दूँगा, और जो 10% है, वो कटने भी बड़े औखे होंगे, बट वो भी मैं बड़ी आराम नाल कटा दियांगा। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज़ फ़ील जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, और वो ऐसे फूलों के जैसे निकालते हैं कि गुरुजी ने अपने सामने मेरी सर्जरियाँ करवाई। मेरा 2.5 किलो का ट्यूमर बना दिया। गुरुजी ने मुझे कैंसर दिया, बट कैंसर मुझे पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने, कि कैंसर कैसे आया। गुरुजी ने दर्शन दिए जबकि वो मनुष्य रूप में नहीं थे। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ। और मेरी लाइफ में वो 5.5 साल बाद आया, क्योंकि कैंसर 5.5 साल पुराना निकला और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने कि मेरा कैंसर कैसे ठीक हो गया। ये गुरुजी की लीला है। और देन मेरे को गुरुजी सत्संग में शेयर करवाने लग गए कि आंटी, मैं तेरे को कैंसर दिया, बट कैंसर वाज़ लाइक, मैं हमेशा कहती थी अगर मुझे वायरल होता तो वो ज़्यादा पेनफुल होता। इस तरह का सत्संग मुझे गुरुजी शेयर करवाते थे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी सोच रही थी कि क्या गुरुजी आप मुझसे ये बुलवाते हो कि अगर मुझे वायरल होता वो ज़्यादा पेनफुल होता? तो मेरे को वायरल हो गया संगत जी। और ऐसा वायरल कि मुझे अ, इतनी गंदी कॉफ़ हुई, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, और कोरोना के जो अ, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, वो सबके ऊपर हो रहे थे। तो मेरी बेटी के क्लिनिक में एक नर्स काम करती है, मैकेंज़ी। तो एक दिन वो ऐसे ही बता रही थी कि मुझे कहने लगी कि "यू आर वेरी ब्लेस्ड", मुझे बोलती है। "मेरी मदर को कोरोना हुआ, इतना सीवियर हुआ।" उसने मुझे ये बोला कि "कैंसर से भी तुम इतने आराम से", क्योंकि सब लोग देखते थे कि मुझे कैंसर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरी लाइफ़ में। और मैं फर्स्ट डे ही वॉक करी उतनी बड़ी सर्जरी के बाद, और मेरा एक भी बाल गुरुजी ने नहीं गिरने दिया। इससे बड़ी मैं और ब्लेसिंग क्या माँग सकती हूँ अपने भगवान से। सो देन, क्योंकि मैं बहुत-बहुत पॉज़िटिव थी। एक पॉज़िटिविटी जो है मुझे इतने बड़े कैंसर की बीमारी से पार लगा गई। देन शी सेड कि मेरी मदर को कोरोना हुआ, और फिर मेरी मदर को कॉफ़ हुई, वूपिंग कॉफ़ हुई, वायरल हुआ, और उस कॉफ़ में उसके रिब्स टूट गए। तो देन मैंने अपनी बेटी को बोला कि भावना, वो मैकेंज़ी ऐसे बोल रही थी कि उसके मदर के खाँसते-खाँसते रिब्स टूट गए और वो हॉस्पिटलाइज़्ड है। क्या ऐसे होता है? तो कहती है, "हाँ मम्मा, क्यों नहीं होता?" देन मुझे वायरल हुआ और मुझे वैसे ही वाली वूपिंग कॉफ़ शुरू हो गई, और कह मैं खाँस रही थी तो वो हँस के कहते हैं कि मम्मा आपके भी रिब्स टूट सकते हैं, बट आपके गुरुजी नहीं टूटने देंगे। तो मैं गुरुजी को क्वेश्चन कर रही थी। दैट्स व्हाई मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया कि देख तेरा कैंसर कैसे मैंने झटके से निकाला, और अब देख ले वायरल में तू कैसे। फिर मैंने गुरुजी को से माफ़ी माँगी, और नो डाउट गुरुजी माफ़ भी बड़ी जल्दी कर देते हैं। बहुत भोले शंकर गुरुजी भगवान हमारी लाइफ में आए, और हम नादानियाँ करते रहते हैं और वो हमेशा हमको माफ़ करते रहते हैं। ऐसा मेरी जर्नी गुरुजी के साथ रही, और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी लाइफ स्मूथ की, और अपने चरणों से जोड़ा उन्होंने, और बोला कि मैंने तेरे को मोक्ष दी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे को भी। और जो भी कष्ट आता है हमारी लाइफ में, हम यही कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी बहुत छोटे में काट रहे हैं। और ऐसा मैंने उनके साथ, मेरी जर्नी यही कहती है कि ये बिल्कुल एक सच्चाई है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सत्संग जो गुरुजी करवाना चाह रहे हैं, मेरे पास
जब गुरुजी की समाधि बनी 2007 अगस्त एंड में कुछ पिक्चर्स आई, तो मैं वो पूरा सत्संग आई थिंक गुरुजी शेयर करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मैं ही बुलवाऊंगा। तो आज उसके साथ चोरी वाला सत्संग जो है गुरुजी ने दिया, हमारे घर चोरी हुई थी, वही दौरान में मैं गुरुजी वो वाला सत्संग आज बुलवाएंगे। गुरुजी ने 31 मई 2007 में मनुष्य रूप छोड़ दिया, और सुबह सुबह हम लोगों के पास न्यूज़ आई कि आंटी गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, और आप बैठ के सबको फ़ोन कर दो कि मंत्र जाप करें गुरुजी के लिए। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगता था, मैंने अमेरिका, कनाडा में मेरा बेटा था, और सब जगह रिश्तेदारों को सबको फ़ोन कर दिया अर्ली मॉर्निंग कि आप सब लोग गुरुजी के लिए मंत्र जाप करो। फिर थोड़ी देर बाद आया कि नहीं, कलेक्टिव मंत्र जाप गुड़गांव में जैसे गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो आप वैसे ही कराओ। तो जैसा आदेश आया वैसा ही होने लग गया, और थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया कि सब लोग अब गुरुजी को बड़े मंदिर लाया जा रहा है, तो आप बड़े मंदिर पहुंचो। तो हम लोग वहां गए। वो दिन वाज लाइक, हम सबकी लाइफ में ऐसा आया कि एक वैक्यूम आ गया था लाइफ के अंदर, बट गुरुजी ने उस चीज को बड़ी जल्दी सॉर्ट करके और ये दिखाया कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तुम लोगों के साथ हूँ। ऐसे बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने दिए। तो उनमें से एक ये है समाधि वाला सत्संग, और इसको चोरी वाला सत्संग भी नाम से ये काफी लोग इसको जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को तो होश भी नहीं थी कि क्या हो गया हमारी लाइफ में, बट ऐसा वहां पर कुछ ग्रुप बन गए। एक ये सच का सत्संग है, तो मैं किसी से नहीं डरती। गुरुजी ने मुझे बोला था कि किसी से भी डरने की लोड़ नहीं है, इत्थे कोई भी टके होया नहीं है। तो ये सत्संग एक सब संगत के लिए बहुत जरूरी भी है, और लाइक इसमें ये हुआ कि 2 ग्रुप बन गए थे, जैसा कि गुरुजी प्रेडिक्ट कर गए थे। गुरुजी कह गए थे कि मंदिर ना बनाओ, बाद में प्रॉब्लम होएगी, सब भंबड़-भूसड़ होगा। और जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, गुरुजी का ये वर्ड्स थे, पर संगत नहीं मानी। उन्होंने बोला हमें एक जगह चाहिए जहाँ हम जाकर बैठें, और वहाँ मतलब उनको एक जगह चाहिए थी, तो गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनवाया। तो बड़े मंदिर में फिर ट्रस्ट बना, और गुरुजी ने कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व भी किया, मेरे अंकल को भी, हम लोगों को भी। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो उसमें गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ते ही 2 ग्रुप बन गए। बट ऑब्वियस है, हर जगह जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक फैमिली ग्रुप हो गया, एक संगत ग्रुप हो गई। तो अब क्योंकि गुरुजी ने 2003 से गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट करवाए थे, और वहाँ संगत जुड़ने लग गई थी। तो लोगों को ये था कि गुड़गांव की संगत, उस समय सारा सबको ब्लैकआउट था। कोई सब दिशाहीन थे कि जहाँ संगत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लाइक उनको उनके हाथ में वो मंदिर आ जाए। इस तरह से चल रहा था, और मुझे बोला गया कि आप गुड़गांव की संगत को लेके आओ, और कि ये जो पैसा है संगत का है, और ये संगत को ही मंदिर जाना चाहिए। तो देन मेरे को एक क्वेश्चन था, मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने गुरुजी को क्या माना? लेट गुरुजी डिसाइड, कि इसमें हम लोगों को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए कि ये किसके हाथ में जाए, किसके हाथ में नहीं जाए। गुरुजी भगवान हैं, उनको अगर आप लोगों ने भगवान माना है, तो उनको ही डिसाइड करने दो। देन किसी का क्वेश्चन आया कि अगर आपके घर में चोरी होगी आपकी आँखों के आगे, क्या आप उसको रोकोगे? नहीं। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वैलिड था। तो ख़ैर मेरे को तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व गुरुजी ने होने दिया, और मैं अपना वहाँ पर जाती थी, लंगर का थोड़ा-सा काम होता था, और गुरुजी का दरबार सजाना, फूल-वूल ले जाने, और ये सब मेरे को गुरुजी ने दिया हुआ था। तो वो मैं करती रही, और नियरली 3 मंथ्स हो गए। और एक दिन मेरा और गुरुजी का जो समाधि बनाई गई थी वहाँ पर, जो गुरुजी का प्लेटफ़ॉर्म बनाया था, वो फटाफट जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था, तो वो फटाफट
बदरपुर और सीमेंट से करके गुरुजी के लास्ट राइट्स उसके ऊपर किए थे, और हम सब ने उस टाइम भी बहुत नज़ारे देखे थे। उसमें से क्या-क्या नहीं निकला था। उसमें से त्रिशूल, ओम, ओमकार निकलते ही चले जा रहे थे। और फिर वो ऐसे का ऐसे ही रहा। तो और बड़ा दुखद विषय था कि 3 महीने से गुरुजी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और वो इस तरह से एक चबूतरा बना हुआ था। पहले वहाँ गार्डन था, जहाँ आज गुरुजी की समाधि है, और बारिशों के दिन आ गए, अगस्त मंथ था, एंड ऑफ अगस्त, और वहाँ कीचड़-कीचड़ होने लग गई, और इस तरह का माहौल था। तो मंदिर में बहुत कुछ चल रहा था। देन एक दिन मेरा भाई आता है, बोलता है, "आप यहाँ पे बहुत कर लिया तुमने, चलो थोड़ी दिन रिलैक्स हो लो, देहरादून चलते हैं।" तो मैं तुमको देहरादून ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने लंगर वालों को, आंटियों को बोला कि आंटी मैं 4-5 दिन के लिए देहरादून जाना चाहती हूँ। तो बोले हाँ, हाँ, कोई नहीं, आप थोड़ा जाकर रिलैक्स हो जाओ। कोई नहीं, हमारे पास और किसी को बुला लेंगे। आंटी की ज़रूरत, बहुत सारे लोग हैं आने के लिए। मैं देहरादून चली गई, और संगत जी, मुझे वहाँ पर कोई इंट्यूशन होती है जो मेरी लाइफ़ में कम होती है, इंट्यूशंस। तो मुझे इंट्यूशन हुई कि हमारे घर में चोरी हो रही है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे घर में ना चोर आए हुए हैं। तो कहते हैं कैसी बातें करती है, ऐसे कैसे चोर आ जाएँगे? तो मैंने कहा आप ना, सामने आंटी गुरुजी के जाते थे वो, कश्मीरी आंटी कॉल्स हैं, उषा कौल। तो उनको हम जनरली अपना एक ब्रीफकेस बनाया हुआ था जिसमें प्रॉपर्टीज़ के और एफडीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते थे, और उनको दे दे के आते थे। पर मैं जल्दी-जल्दी आई थी, रात को एकदम मेरा भाई आया और हम निकल गए। तो वो मैं उनको नहीं दे पाई, और चाबियाँ भी नहीं हैंड ओवर करी उनको। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया कि आप ज़रा एक घर का ना चक्कर लगा लेना। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली आए हुए हैं, भाटिया साहब कल आएँगे हम लोग, और फिर उसके बाद मैं आपका घर जाऊँगा और देखूँगा सब कुछ। तो उनका फ़ोन आ जाता है नेक्स्ट डे कि आपके घर में तो डाका डला है। तो डाका डला है घर में, तो कहते हैं कि हाँ, चोर कहाँ से आए? बोलते हैं कि वो बैक डोर किचन से आए हैं। तो फिर कहते हैं कि 1 मिनट अंकल, यहाँ पर तो सारा सामान तितर-बितर है, और एक-एक ड्रॉवर, एक-एक चीज़ बाहर है, और पर लेकिन चोर जो हैं, सारे गैजेट्स जो हैं इंटैक्ट हैं, और इवन बार में से बॉटल्स निकाली हुई हैं उन्होंने, पर वो उठा नहीं पाए कुछ भी। और उन दिनों एलसीडी बड़ा टीवी एलईडी था, निकला था, तो वो हम लोगों ने लिया हुआ था। हम इकट्ठे यहाँ बैठ के मूवी देखते थे। अ, अंकल, आंटी और हम दोनों। तो कहते हैं वो भी वो तक नहीं उठा के गए। सो देन मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा मास्टर बेडरूम में जाना। तो मास्टर बेडरूम का क्या था, अंकल जब देहरादून जा रहे थे, तो अंकल, ये लॉक खराब हो गया था मेरे बेडरूम का। अंकल फटाफट कोई लॉक लेके उसको अपने हाथ से, टाइम नहीं था उसको बुलाने का, कारपेंटर को, तो अंकल ने खुद से पेच खोले और लगा दिया। बोलते हैं देख मैंने तेरा काम कर दिया। तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा ये वाला लॉक तो ऐसे है, मैं ही ज़ोर से धक्का मारूँ तो खुल जाएगा, तो चोर तो कोई आएगा तो प्रोफ़ेशनल ही आएगा। फिर अंकल बोलते हैं कि तेरे साथ तो गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ, वो तो हैं ही। और उनसे वो मास्टर बेडरूम नहीं खुला संगत जी। एक सोचने की बात है कि इतना कच्चा डोर वो चोरों से नहीं खुला। उसके बाद मेरे बच्चों के रूम सारे लॉक थे, वो सारे उन्होंने तोड़ दिए, अलमारियाँ सारी तोड़ दी, सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको, अंकल को बोला ऊपर जाओ, रचित के रूम में, मेरे बेटे का रूम है। तो उन्होंने फाइल में कुछ पैसे रखे हुए थे। मेरे हस्बैंड को कार्ड्स का और थोड़ा गैम्बलिंग का शौक था, तो वो कुछ पैसे छुपा-छुपा के रखते थे। तो उन दिनों हज़ार-हज़ार के नोट के बंडल होते थे। तो उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिसिटी की फाइल है। तो वो कहते हैं हाँ, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, अलमारी में कुछ नहीं है। कॉल अंकल कहते हैं। तो वो मेरे सामने पड़ी हुई है फाइल। तो बोले कि उसमें आप फाइल उठाओ, कहते हैं उसमें कुछ पैसे हैं। तो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो? फाइल का एक-एक पन्ना बाहर है, मैं देख सकता हूँ फर्श पे। तो आपके पैसे कैसे रखे हुए होंगे? उन्होंने बोला आप उठाओ तो सही। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे कह रहे हैं। उन्होंने जैसे ही फाइल उठाई तो कहते हैं अरे वाह! यहाँ तो 1000 के नोट की गड्डी है। बोलते हैं आप उठाओ उसको जेब में डालो।
अंकल ने वो जेब में डाली। फिर मेरी बेटी के रूम में गए तो मेरी बेटी की कुछ कहते सारे ज्वेलरी बिखरी पड़ी हुई है, और क्योंकि मेरी बेटी लाइक शादियों में इधर-उधर डांस वगैरह का अच्छा प्रोग्राम कर देती थी, मतलब अपनी फैमिली में। तो थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, वो कहते हैं सब कुछ बाहर है। उन्होंने बोला एक पाउच में रियल ज्वेलरी भी है। तो इतने में मेरा भाई बोलता है कि बस करो आप, कुछ भी नहीं ले गए चोर, कुछ तो ले जाने दो उनको, अगर थोड़ी बहुत ज्वेलरी ले भी गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो मेरा भाई ऐसे बोलने लग गया, बस कर दो, अब आप जा नहीं रहे हो वहाँ पर। आपका घर पूरा इंटैक्ट है, चोर आए, चले गए, कुछ नहीं ले जा सके। तो बट अंकल थोड़े से हो गए, कहने लगे नहीं, नहीं, ऐसे चोरों का आना और इतना वो कर जाना, हम सामने रहते हैं, नहीं एफआईआर तो लिखानी पड़ेगी, आपको आना ही पड़ेगा। तो हम लोग निकले वहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कारपेंटर को बुला के आप ताला लगवा लो नया। तो अंकल कहते हैं नहीं, इसमें से तो चाबी भी घूम रही है। लाइक 3 तालों का वो लॉक था, उसमें एक चाबी घूम रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, वो चाबी आप अपनी जेब में डालो। अच्छा एक चीज़ और उन्होंने बोला कि आपके पास जो मैं ब्रीफ़केस रख के जाता था वो रचित के कमरे में होता है, तो आप वो आपने चेक किया? कहते हैं नहीं, सबसे पहला मेरा ध्यान उसी के ऊपर गया, वो कहीं नहीं है भाटिया साहब, वो चोर ले गए हैं आपका, ब्रीफ़केस ले गए हैं चोर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसमें तो मेरे इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे को तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। तो उन्होंने बस ऐसे बोला एक बार और देख लो आप प्लीज़। तो कहते हैं नहीं जी मैंने सब देख लिया। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसे करो, आप लॉक लगाओ और एक चक्कर मार के घर का, और आस-पास कहीं छोड़ गए हों। तो इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को प्रे की कि गुरुजी चोरों के किसी काम का नहीं है वो, और आप तो कोई भी चीज़ कहीं से भी लाके रख सकते हो। तो आप प्लीज़ वो ब्रीफ़केस मुझे मेरी हेल्प करो उसके अंदर, और आप तो आप अंतर्यामी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो देन थोड़ी देर बाद अंकल का आता है कि अंकल मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 10 बार वहाँ से आया गया हूँ किचन के रास्ते से, वो ब्रीफ़केस भी आपका वहाँ रखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है संगत जी? अब ये सत्संग जो है स्टार्ट होता है अब। तो देन हम लोग आ गए, सीधा हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए, देहरादून से सीधा वहाँ पहुँचे। नियरली रात के 10 बज गए, 10-11 बजे का टाइम था, और हम कहीं भी होते थे, हमने नहीं परवाह की कि हमारे घर चोरी हुई है, इतने चोर वहाँ आए हैं, और हम लोग अपना आराम से मंदिर गए कि हम मंदिर जाएँगे, लंगर खाएँगे, उसके बाद घर जाएँगे। संगत जी, क्या होता है वहाँ पर? अब ये ध्यान से आप लोग सुनो कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। तो समाधि ऑगस्ट मंथ आप सोचो, और वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है जहाँ गुरुजी को लास्ट राइट दिए गए थे, और हम लोग परिक्रमा करते थे उस जगह की डेली। जब भी मंदिर जाना, उस जगह की एक परिक्रमा लेनी, और ऐसे उस पे हाथ रख के माथे पे लगाते थे। तो ये रूटीन थी हम लोगों की। तो मैं लंगर के बाद 11:30 बजे का टाइम होगा, और मैं ऐसे समाधि को हाथ लगा रही हूँ और माथे पे लगा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से 150 संगत वहाँ पे खड़ी है, जो पॉसिबल ही नहीं था उस वक़्त, क्योंकि हर लोग इधर-उधर भाग रहे थे। एवरीबॉडी की एक तो मंदिर दूर है, और गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए अर्ली 50s में, और लोगों को ये हो गया था कि अगर ये अर्ली 50s में छोड़ गए तो हम लोगों का क्या कल्याण होगा? हमारा कल्याण कहाँ? तो इस तरह का माहौल था, और कोई कहता था कहीं पे गुरुजी आ गए। गुरुजी कोई गोविंदी करके बंदा था द्वारका में, सारी संगत वहाँ भागना शुरू हो गई थी, और मुझे भी सब लोग यही कहते थे कि आंटी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ, वहाँ चलो, वहाँ चलो। बट गुरुजी ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। तो वहाँ पे हार्डली एनी पीपल हुआ करते थे, और रात के 11:30 बजे 100-150 संगत समाधि के पास खड़ी है। तो और कहते हैं कि आंटी आप जब गुरुजी को ऐसे हाथ लगाते हो इधर समाधि पे तो आपके हाथ नहीं छिलते? मैंने कहा हाँ बिल्कुल छिलते हैं। कहते 3 महीने हो गए और गुरुजी की समाधि ऐसे पड़ी है, और ये यहाँ पर और चीजें हो रही हैं। तो ये क्या दुखद
विषय नहीं है। मैंने कहा हाँ, बहुत दुःख का विषय है। तो आंटी कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर? बोले नहीं, इसको एक डिसेंट सा जामा दो। तो मैंने कहा मैं बीच में कौन हूँ? ना, मैं नहीं। बोले अगर कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हो, अगर हम पूरे मंदिर में किसी को ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको करते हैं। और उन्होंने मेरी चुन्नी खींच के उसके अंदर पैसे डालने शुरू कर दिए। तो किसी ने ₹100, किसी ने ₹50, किसी ने कुछ। तो एक बाबा अंकल हैं गुड़गाँव के, वो रघुवीर अंकल वाले बाबा अंकल नहीं, एक बहुत ही प्योर संगत हैं बाबा अंकल, जिन्होंने शादी नहीं की और जो गुरुजी के टाइम पे गुरुजी के अंदर की सेवा में होते थे इन हिज़ 20s। तो वो हमारे लाइक अ फैमिली, वो मेरे बेटे के समान हैं और वो यहाँ पर बहुत आना-जाना था। तो एक दिन मैं और बाबा अंकल आए हुए थे, यही डिस्कस हो रहा था कि आंटी ये सब क्यों हो रहा है? तो मैंने भी कहा हाँ, मैंने कहा बट कोई है ही नहीं कि जो चीज़ों को सँभाले, करे, तो यहाँ तो झगड़े ही हो रहे हैं। तो कहंदा नहीं, हो सकता है गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, गुरु जी दी लीला, गुरु जी जानन। मैंने कहा मेरे को कहाँ से आगे लाना गुरुजी ने और क्यों लाना? मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर हूँ। और कहते हैं देखना आंटी, पता ही नहीं चलना कब की हो जाओ। तो और ये 2 दिन पहले की बात है और उस दिन वो उन लोगों ने मेरे चुन्नी में पैसे डालने शुरू शुरू कर दिए। गोपाल सेठी अंकल खड़े थे, बाबा अंकल खड़े थे साथ में। मैंने दुपट्टा उनको दिया, मैंने कहा अब ये पैसे गिनो। और देन बाबा अंकल ने बोला कि आंटी अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी ने आपको दी है। ये आपको ही करनी पड़ेगी। तो अंकल साथ में आए थे। गुरुजी ने देखो, गुरुजी की लीला देखो, अंकल साथ में आए हुए हैं, हम दोनों वहाँ पर हैं। और वो पैसों का अमाउंट तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 8-10 हज़ार रुपए थे, उस समय जो भी संगत के पास थे। पर हर संगत की कंट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर। मैं ये भी ज़रूर कहूँगी। बट एकदम इकट्ठा सामान मँगाना था, तो अंकल साथ में थे और मैंने बाबा अंकल को बोला अब हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे एकदम ध्यान आया कि एक दिन बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ पर, जब वो मनुष्य रूप में थे, बिल्कुल 1:1 दर्शन दिए थे। मेरी हालत ख़राब थी, जैसा मैंने बताया मुझे ट्यूमर का गुरुजी ने सर्जरी करवाई थी और उस ट्यूमर को 2.5 किलो का बनाया था। और हमेशा कोई भी बड़ा फ़ंक्शन होता था, गुरुजी मुझे 8-10 दिन पहले कहते थे जाके मंदिर की सफाइयाँ देख जाके, सफाइयाँ करनियाँ। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बैसाखी का टाइम था और गुरुजी ने मुझे बोला नहीं, क्योंकि वो कह भी नहीं सकते थे। मेरे लिए स्पेशल चेयर लगती थी वहाँ पे, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी। मैं एम्पायर स्टेट जाया करती थी। तो फिर मैं बहुत उदास थी, तो मेरी बेटी आई हुई थी। बेटी ने बोला कि मम्मा आप बहुत उदास हो कि गुरुजी ने आपको वहाँ बड़े मंदिर का नहीं वो दिया, तो क्योंकि आप इस लायक ही नहीं हो। आप तो अपना चलना-फिरना ही बड़ी मुश्किल से करते हो। तो कहती है आप चलो मेरे साथ, तो मंदिर में चलते हैं। वो 1 दिन पहले बैसाखी से शाम का टाइम था। वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों बड़े मंदिर जाते हैं। वो कहती है कि मैं कर लेती हूँ वहाँ पे जाके सफाई और आप बैठ जाना आराम से। उसने मुझे जो मेन दरबार के बाहर जो बेंच बनी हुई हैं बड़ी-बड़ी दोनों साइड, जो मेन दरबार में जब हम अंदर जाते हैं, उससे पहले, तो उसने मुझे वहाँ बिठाया और बोला कि और वहाँ मंदिर में कोई नहीं है। 1 दिन पहले, कल बैसाखी है, आज शाम का टाइम है और वहाँ कोई भी संगत नहीं है। तो बोली मम्मा यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मेला लगा रहता है। बैसाखी से हफ्ता पहले ही मेला लगता है और कल तो बैसाखी है, यहाँ तो डेकोरेशन भी हो रही होती है इस वक़्त। तो मैंने बोला बेटा ऐसा होगा कि सब लोग पीछे चाय की ब्रेक ले रहे होंगे, वहाँ किचन के सामने हम बैठ के चाय की और लंगर की ब्रेक लेते थे। तो तू वहाँ जा देख। उसने मुझे बिठा दिया और बोली मैं देख के आती हूँ। और मैं वहाँ बैठ गई। मैं मन में सोच रही हूँ संगत जी, ना कोई ये सपना है, कोई ना कोई इमेजिनेशन है, ना कोई टेलीपैथी है। ये एक डायरेक्ट साक्षात गुरुजी का सत्संग है, उनके मनुष्य रूप का। मैं बस वहाँ बैठ के और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये तो 2.5-3 घंटे से पहले निकलेगी नहीं और मेरे मेरे लिए 2.5-3 घंटा इस कंडीशन में काटना बहुत मुश्किल है। काश कि आप मुझे दर्शन दे दो। तो संगत जी, अभी सेकंड्स भी नहीं होते हैं मुझे और मेरी बेटी मुझे मेरी आँख बंद है और मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा आपके सामने गुरुजी खड़े हैं। तो मैंने कहा शायद मेरी इमेजिनेशन है। तो
मैं अपनी उसी धुन में हूँ और एकदम मेरी बेटी आती है, ज़ोर से मेरे कंधे हिलाती है, "मम्मा गुरुजी खड़े हैं आपके सामने।" और संगत जी वो साक्षात गुरुजी सामने खड़े थे और उन्होंने मुझे बताया उस दिन कि तब पिलर्स जो हैं वो व्हाइट इटालियन मार्बल के बने हुए थे, वहाँ के मंदिर के, अभी भी हैं। तो गुरुजी ने बोला, "ए पत्थर मैनू बड़ा पसंद है, ए पत्थर बड़ा ठंडक दिंदा है, ए ठंडक वाला पत्थर है, तो मैं हुण चाहूँगा कि बाकी दी चीज़ां भी इसी पत्थर विच बने।" बट उस टाइम पे गुरुजी ने बताया कि ये पत्थर अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी अ, मैंने उसी समय मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने व्हाइट इटालियन मार्बल बोला हुआ है कि उनको बहुत पसंद है। मैंने बाबा को बोला, "बाबा अंकल इंटू प्रॉपर्टी।" बाबा अंकल बोले कि, "आंटी ये पत्थर मिलना इतना ईज़ी नहीं है, बट गुरुजी ने बोला है, तो हर चीज़ पॉसिबल होगी।" और वहीं पे ही ये सब कुछ डिस्कस हो गया। वो मंदिर में कौन मिस्त्री काम करता है और कहाँ से सामान लेना है। नेक्स्ट डे 11 बजे जहाँ पे आज कार पार्किंग होती है, पहले भी वहीं होती। तो वहाँ पे सारा सामान पहुँच गया और काम शुरू हो गया, समाधि बन रही है गुरुजी की। उसको एक डिसेंट सा जामा दिया जाना है और वो सब तैयारी हो गई। अब ये पत्थर कटना ही शुरू हुआ और एकदम 10-15 जीपें जो हैं पुलिस वालों की आ गई और उन्होंने काम रुकवा दिया। बोले कि, "आप कैसे काम शुरू कर सकते हो?" तो हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक महापुरुष हैं, उनकी समाधि को एक डिसेंट सा जामा देना चाहते हैं और गरीबों का पैसा लग चुका है, क्योंकि सामान आ चुका था। तो वो बोलते हैं, नहीं जी, ऐसे नहीं होता। आज आप समाधि का बोल रहे हो, कोई और आएगा वो कहेगा जी हॉल में काम करना है, कोई और तीसरा ग्रुप उठ के आ गया। हमने बोला हम ग्रुप-व्रुप नहीं है, हम ये वाला काम करके बस हमारा और कोई रोल नहीं है। बट उन्होंने काम रुकवा दिया। ऐसे हमने 3 बार शुरू किया और 3 बार काम रुक गया। 2 दिन बाद संडे था, तो संगत जी ना तो मोबाइल्स होते थे उस समय सबके पास, एक फ़ोन करने की देर होती थी, 100-150 लोग कहाँ से आते थे। वो मैं आज भी सोचती हूँ, मैं 20-25 लोगों को याद कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा वहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, जो पुराने लोग थे। तो वो लोग आ जाते कि आज संडे है, आज पुलिस नहीं आएगी और आज हम फिर कोशिश करते हैं। और संगत जी ऐसे होता नहीं है कि संडे वाले दिन पुलिस की छुट्टी होती है। तो ये मेरी एक बेवकूफ़ी थी समझो या जो भी था या गुरुजी का लीला थी। तो हम पहुँच गए सारे वहाँ पर फिर पुलिस वाले आ गए, सब लोग पकड़ के, "भाटी आंटी पुलिस आ गई।" छोटा-सा गेट खुला होता था। तो वहाँ से पुलिस वाला इंस्पेक्टर वही रोज़ आता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, "भैया, तुम क्यों तंग कर रहे हो हम लोगों को? एक छोटा-सा काम है, अब इतना सामान आ गया गरीबों का, इसको करने दो, एक डिसेंट सा जामा देना है। भैया जब तुम एंट्री लेते हो, क्या तुम्हें यहाँ कुछ फ़ील नहीं होता? यहाँ का ऑरा, यहाँ की पॉज़िटिविटी, यहाँ की डिविनिटी" और मेरे से गुरुजी पता नहीं क्या-क्या बुलवाने लग गए। "ऐसे नहीं लगता आप स्वर्ग में आ गए?" और वो भी कहता है, "हाँ जी, बिल्कुल मैडम जी, ऐसे ही लगता है। मैं भी बहुत इन चीज़ों में हूँ, पर यहाँ का तो चीज़ ही बड़ी अलग है, ये है, वो है।" और मैं अपनी चोरी की कहानी उसको बताने लग गई। देखो ऐसे-ऐसे हमारे घर चोर आए और वो कोई भी चीज़ नहीं ले जा सके, ये वो मैं पूरी कहानी उसको बता दी। तो कहता है कि मैडम जी आप डीएलएफ में रहते हो? मैंने कहा हाँ। कहता गुड़गाँव डीएलएफ? मैंने कहा हाँ। कहता आपका कोठी नंबर 5009? मैंने कहा हाँ। कहता मैडम जी यहाँ पे आप झूठ बोल गए। मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला? तो कहता है जी आपके यहाँ से आप कहते हो एक पिन नहीं गई पर आपके यहाँ से एक छोटा-सा बक्सा गया है और उसमें जो है ऐसा विचित्र सामान आया है कि सारा पुलिस वाली बेल्ट जो है सिर पकड़ के बैठी है कि अब कहता है मैडम जी आप ये मत समझना कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक आपने सोच रहे होंगे कि कोई डोमेस्टिक हेल्प निकाली होगी और वो आया और वो कोई सामान नहीं चुरा सका। मैडम जी आपके यहाँ 5 प्रोफेशनल चोर 5 रात रहे हैं और उन 5 रातों में उन्होंने करनाल और गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और आपकी डीएलएफ के घर में चोरी की है, वो 5 रातों में। और जगह से वो ट्रक लोड ऑफ गुड्स लेके आए हैं और आपके यहाँ से एक अजीबो-गरीब एक बक्सा लेके आए हैं जिसमें
रंग बिरंगे कांटे छुरियां और अजीबोगरीब सामान है। तो संगत जी, वो रंग बिरंगे कांटे छुरियां ये थे कि हम लोग बाहर रहते थे, तो हांगकांग से मैंने बहुत हैवी ड्यूटी गोल्ड प्लेटेड कटलरी मंगाई हुई थी। नियरली 150 का सेट था मेरे पास, क्योंकि बाहर पार्टीज वार्टीज होती थी घर के अंदर। तो वो इतना महंगा था, और जब मैं यहाँ लेकर आई, और यहाँ तो हम गुरुजी के पास ही जाने लग गए थे, और इतना पार्टीज वगैरह नहीं होती थी, और धीरे धीरे वो डिसकलर्ड होने लग गया यहाँ के पानी से कह लो या जो भी डस्ट से कह लो। और मेरे को बड़ा ही सॉरी फील होता था कि मैं इतना महंगा लेके आई और वो खराब हो गया। तो मैं ये कहती थी, ना फेंकन जोगा ना रखन जोगा। तो और दूसरा, देहरादून जाने से पहले गुरुजी ने एक सत्संग कराया था घर में, और मैंने जो है जब मेरा भाई अचानक से आ गया, फूल की डेकोरेशन वहाँ हो रखी थी। अब सिंस मुझे देहरादून जाना था, तो मैंने कहा कि इसको फूलों को तो मैं उतार लूं, और फ्लोरिस्ट तो बाद में आएगा, तो तब तक ये स्मेल हो जाएगी घर के अंदर। तो मैंने अपना हार्डवेयर का वो ड्रॉयर खोला, तो मेरे हस्बैंड जब भी कोई चीज जरूरत होती थी फट मार्केट से लेके आ जाते थे। तो उसके अंदर पता नहीं अनगिनत प्लास, अनगिनत हैमर, अनगिनत स्क्रू ड्राइवर, पता नहीं वो भरा पड़ा था। तो मुझे गुस्सा आ रहा कि इतना गंद यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, और हर समय नया ले आते हैं। तो संगत जी, वो पूरी ड्रॉयर वो खाली कर गया, एक हैमर छोड़ गया, एक-एक चीज़, हर चीज़ का एक-एक पीस छोड़ के बाकी सब वो उठा के ले गए, और वो रंग-बिरंगे काँटे छुरियाँ जो वो कह रहा था। और ये नहीं कि उन्होंने उसको गोल्ड का समझ के लेके गए हैं चोर। वो वे नया सेट भी आया पड़ा हुआ है, वो वहीं खुला हुआ पड़ा हुआ है। वो नहीं हाथ लगा उनके, और वो वाला सामान। कह रहे हैं कि ये चोर पकड़े गए करनाल में, और ये पूरे गुड़गाँव वाली पुलिस ने पकड़ा, और दिल्ली में उनको लेके आए, जो भाटी माइंस में, और वहाँ पूरी बेल्ट में आपकी चोरी की चर्चा है। तो हमने चोरों को बोला, भैया तुम लोग वहाँ पर 5 दिन रहे हो उस घर के अंदर, और तुम वहाँ से कुछ नहीं, सामान वहाँ नहीं था, ये था, ये कूड़ा था वहाँ पे। तो कहते हैं, नहीं साहब, वहाँ पे तो सब कुछ था। वहाँ पे क्या नहीं था? वहाँ पे ऐसा था कि अगर हम नोटों की गड्डी को हाथ लगाते थे, तो उसमें से साँप निकल आता था। अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक्स छेड़ते थे, तो उसमें से करंट आने लगती थी। अगर हम उनका गोल्ड हाथ लगाते थे, तो उसके अंदर से हमारी आँखों के अंदर मिर्ची मिर्ची डाल दी जाती थी। तो वहाँ तो कुछ भूत रहते हैं, और वो भूत, आप तो चोरों से भी बड़े चोर हो, तो आप ही चोरी करके दिखा दो। तो हम मान जाएँ, आप कोई भी चीज़ लाके दिखा दो वहाँ से। तो कहते हैं सारी पुलिस आपके घर गई है, और कोई भी कुछ नहीं उठा सका वहाँ से। और अरे! आपके सिर पे तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग चल रही है, ये तो बहुत छोटा काम है। आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे तो वीवीआईपीज़ की अप्रोच लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट की ये समाधि नहीं बननी चाहिए। तो मैडम जी, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और जो आपको नहीं रोक सकती। आपको हम 24 घंटे देते हैं, और आप यहाँ पे कोई भी अब पुलिस वाला नहीं आएगा। आप इसमें जो काम कर सकते हो, वो आप करो। और साथ में उसने ये बोला, तब जब सत्संग होता था तो मैं वहाँ पे ब्लैंकेट्स बिछाती थी, बाहर से लाई थी, ऊपर व्हाइट शीट्स बिछाती थी। तो वो कहते हैं, वो जो ब्लैंकेट्स आपके घर में रखे हैं ना, उनमें चोर 5 दिन सोए हैं, और खूब एसी-वेसी चला के, और उनको आप ड्राई क्लीन करवा लेना। वो पूरा मेरे को हर चीज़ बताई उस इंस्पेक्टर ने, और बोला कि आप काम शुरू करो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। तो संगत जी, वो जो काम चला, इट वाज़ लाइक कि पहले हमने गड्ढे खोदे, लेंटर डला, गड्ढे खोद के पूरी वो 150 लोगों की जो चेन थी, वो एक लाइक का कार सेवा, अम, जहाँ कार पार्क से लेके समाधि तक पूरी लाइन ह्यूमन चेन बनी। और जैसे साथी हाथ बढ़ाना ले, साथी हाथ बढ़ाना, वो एक-एक तसला उठा के, ईंटें लाके, लेंटर डालना, ये करना, वो 150 लोगों का हाथ गुरुजी ने लगवाया उसके अंदर, और वो समाधि बनकर तैयार हुई 36 घंटे में। 36 घंटे लगे उसको, नॉन स्टॉप। हम लोग बीच में थोड़ी देर 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेते थे, लेट जाते थे या जो भी। और इतना सुंदर वक़्त गुरुजी ने कटवाया कि उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये गुरुजी ने कुछ इस तरह के सत्संग दिए, अपनी
मनुष्य रूप की जर्नी के और जाने के बाद के। तो गुरुजी चाहें तो कुछ भी हो पॉसिबल है, ऐसा हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का सुनने का, और जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही निग्गा और बिल्कुल गुमसुम, बस ਉਹੀ as if बस उस टाइम ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। बस गुरु जी दी लीला आंटी, जिन्हों जदों ਹਾਂਜੀ पहचाना। हाँ जी, गुरु जी दी ਹਾਂਜੀ लीला सारी, गुरु जी ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਕਰੇਜ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੀ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਿਊਮਨਸ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਏ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਜਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਕਮਸ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ what ਗੁਰੂ ਜੀ is। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ एक ਹੁਣ और ਬਸ चीज ਜ਼ਿਆਦਾ, है आंटी, ਹਾਂਜੀ एक चीज और मैं और ऐड करना चाहूंगी, गुरु जी ने दिमाग ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਵੀ मैं करवाने वाला, बचाने वाला भी मैं, ਤੇ सब चीज अगर मेरे हाथ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ तो एवरीथिंग जो है ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेट हिम डिसाइड। तो वही गुरु जी ने ऐसा संग इस तरह बनाया कि वही करता, वही धरता, वही सब कुछ। तो सानू एक बारी अपनी चीज जो है, अपनी जो नैया है उन्होंने हाथ में सौंप देनी चाहिए। सत्संग का सार यही निकलता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ आंटी, जी, थैंक यू। हाँ जी। दिस वाज थैंक यू नहीं रियली आंटी, रियली शुक्राना गुरु हार्ट जी। वार्मिंग। हाँ जी, बहुत ही ਨਿੱਘਾ ਸਤਸੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जी, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हाँ जी, Over to you, Vasan uncle. Thank you so much. यस, हाँ जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी का, सारियां दा शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल, डिवाइन और अलग हटके मैं इसलिए कहूंगा उषा भारती आंटी की, गुरु जी महाराज ने आज्ञा दे दी है संगत जी को, एक एक करके गुरु जी महाराज नई संगत को का मार्गदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है और ज्यादा। हाँ जी, अब वो दिन आ गए हैं, अब वो दिन चले गए जब नई संगत को कुछ नहीं पता था। वो एक एक करके संगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं गुरु जी के टाइम की संगत, पुरानी संगत,
और संगत, उन सब से आग्रह करूंगा कि अब इस कम नु आगे बढ़ाना आ गया है। जो गुरु जी महाराज का मैसेज है, जो गुरु जी महाराज की जो डिवाइन लाइट है, उसको हमने स्प्रेड करना है। अब चोरी छिप जी के छिप के बैठने वाला काम नहीं रहा। जी आने वाली संगत को तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए उषा भारती आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में ऐसा कुछ जो ठीक समझे वो पुरानी संगत हमको बता सकती है। हम तो नई संगत हैं। नहीं हमें अंकल, ऐसे है नहीं, पुराना तो कुछ नहीं है। हाँ, संगत संगत है, हमें बट हाँ जैसे मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा ठीक से, क्योंकि मार्गदर्शन संगत भटकी हुई है। क्योंकि वो एक डिविनिटी वाला सत्संग है, गुरुजी ने एक अलग से एक सत्संग दिया। गुरुजी ने बोला ये बिल्कुल रिचुअल से मुक्त है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं होने चाहिए और इसमें कोई वहम नहीं होने हैं। इसमें कोई, जो गुरुजी ने 2003 में गुड़गांव से शुरू करवाया, उससे संगत अभी भटकी हुई है। नो डाउट कि उनको नहीं मालूम, क्योंकि पुराने वक्त की संगत को भी गुरुजी ने गुड़गांव के सत्संगों में जो रेगुलर होते थे नहीं आने दिया गया उन लोगों को। तो उसमें ये है कि इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। इसमें ये है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और धीरे धीरे सब लोग उस चीज को मानने लगेंगे कि गुरुजी ने 3 चीजें दी हम लोगों को। एक शब्द वाणी, जो गुरुजी वॉज वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट शब्द। वो रागी, उस एक शब्द को कई रागियों ने गाया, तो गुरुजी ने पर्टिकुलर रागी को चुना एक पर्टिकुलर शब्द के लिए। गुरुबानी दी, कैसेट्स बनाई और सीडीज बनाई और कुछ कुछ संगत को दी, और हम लोगों ने आगे उनकी कॉपियां करके और आगे डिस्ट्रीब्यूट की। पर लेकिन वो वक्त वहीं रुक गया। जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो बहुत सारे सिंगर्स आ गए, और सिंगर्स जरूर आते थे गुरुजी के यहाँ, बट फॉर कोई बड़े ओकेजन में, लाइक गुरुजी का बर्थडे है तो सिंगर आ गए। फिर भी 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा गुरुबानी चला करती थी उस वक्त भी, गुरुजी के टाइम पे। और एम्पायर स्टेट में गुरुबानी ही चलती थी, गुरुजी के सिलेक्ट किए हुए शब्द। गुरुजी ने 3 चीजों को इम्पोर्टेंस दी जब 2003 गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाया। तो मैं उसकी एक गवाह हूँ। तो मैं ये बता सकती हूँ कि गुरुजी ने सत्संग में क्या क्या दिया हम लोगों को। एक तो हम लोगों को गुरबानी लगानी चाहिए अगर हम सत्संग कर रहे हैं। अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हैं तो जो मर्जी करो, फिर गुरुजी के स्वरूप को ना लगाओ वहां पर। गुरुजी के स्वरूप को लगाना है तो उसमें हमें 3 चीजों को फॉलो करना है। गुरुबानी, दूसरा सत्संग शेयरिंग, और तीसरा लंगर की मर्यादा। तो ये गुरुजी ने जो हम लोगों को सिखाया, उंगली पकड़ के एक एक स्टेप, कैसे नीचे बैठना है, कैसे हम लोगों को लाइक कनेक्शन बिठाना है, शब्द बानी चलानी है, और फिर लंगर मर्यादा के साथ करना है। गुरुबानी के टाइम ओनली चाय प्रसाद, और हम लोग ये है कि खिलाने पिलाने में ही लग के, और उसमें हम समोसे भी खिला रहे हैं, उसके अंदर हम जलेबी भी खिला रहे हैं, उसके अंदर कोई पकोड़े खिला रहे हैं, कभी ब्रेड पकोड़े खिला रहे हैं। फिर पेट भर के फिर कहते हैं कि अब लंगर लग जाएगा, और लंगर की जी थाली भी खत्म करनी है। लंगर में भी कितनी चीजें रख रहे हैं, जो गुरुजी ने बहुत सिंपल दिया था। तो मैं संगत से यही अरदास करूंगी कि ये लंगर की मर्यादा को सब लोग समझ लें, और जब पेट भरा होगा तो लंगर का चाव भी निकल जाता है। तो उसमें हम भाव से नहीं खाएंगे तो वो लगेगा नहीं। और बहुत बुजुर्ग संगत होती है जो नहीं खा पाती इतना, कि आप पहले समोसे भी खिला दो, चटनियां भी खिला दो, और फिर उसके अंदर क्या होता है कि शब्द वाणी में तो ध्यान ही नहीं है, खाली वो बटने बटाने में, चीजें उठाने में, फिर प्लेटें उठाई जा रही हैं, ये किया जा रहा है। तो शब्दों की जो इम्पोर्टेंस है, जो उससे आपको हीलिंग मिलनी है, वो हम ले नहीं पाते। बहुत डिस्टरबेंस होती है, कनेक्शन नहीं बैठता। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रख के अगर सत्संग शुरू किए जाएँ, हाथ में खाली चाय प्रसाद, जब तक शब्द वाणी चल रही है, उसके बाद सत्संग शेयरिंग, उसके बाद जब लंगर आता है तो आप एन्जॉय करो, ब्लेसिंग लो उस लंगर की, लाइक उस ब्लेसिंग से खाओगे, चाव से, भाव से खाओगे तो वो लंगर लगेगा भी। अगर अनमने मन से खाएँगे तो लंगर नहीं लगता। ये गुरुजी ने बहुत स्पष्ट बताया हुआ है टाइम टू टाइम। तो बस ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, अगर आप सत्संग रख रहे हो, और बहुत सिंपल रखो,
और ना उसमें केटरिंग का गुरुजी ने दिया था, घर में बोला था बनाने को, एक चीज घर में अपने हाथ से बनाओ, आधा लंगर और आधा भले संगत की हेल्प लेके बनवाओ। तो ये गुरुजी का दिया हुआ है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम बहुत कुछ ले जाएंगे, नहीं तो जैसे भटक रहे हैं भटकते रह जाएंगे। ना इसमें पुरानी संगत आती है, ना इसमें नई संगत आती है, क्योंकि पुरानी संगत को भी गुरुजी ने नहीं आने दिया था उस लंगर में, उस सत्संग में गुड़गांव के। तो इसलिए खाली गुड़गांव के ही लोग भी, बहुत ज्यादा लोग बाद में ही जुड़े हैं। शुरू शुरू में खाली 4 आंटियों के साथ गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया था। तो उसमें ये गाइडलाइंस हैं, अगर जो लेना चाहे तो वेलकम है, नहीं तो जैसे कर रहे हैं तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आंटी आपने। ये हाँ जो जी। सत्संग में जो ये मर्यादा का पालन होना ही चाहिए। हाँ जी। बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है भाटिया आंटी। हाँ अ, जी। समय हो चला है सेकंड सेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो गुरु संगत की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपका शुक्राना, गुरु जी महाराज का शुक्राना। और तीनों ढिलो आंटी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इफेक्टिव इंटरेक्टिव सेशन। और मैं साथ संगत जी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा नेक्स्ट सेशन 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, इसका आज फर्स्ट सेशन है। जो संगत इसको सुनना चाहे वो बने रह सकते हैं, दे कैन कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को खत्म नहीं करेंगे, और हम आज्ञा नहीं लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग को हम बंद कर सकते हैं। जय गुरु जी महाराज।